Hello students. So today we'll be doing lecture 1 of one of the important topics in 11th, combinations. So after permutation we study combination, and here we'll be doing it in two parts. Today we'll be introducing the formulas, the terms, and the statement problems we'll be dealing in the subsequent parts in our next lecture. So today we'll be dealing more with the formula aspect, not with the practical aspect, and next class definitely will be going ahead and doing it. But we need to know the formulas, the calculation part, aspects before going on to solve the statement problems. So what exactly is combinations, right? So we saw in permutation the P stands for arranging or taking some things in some specific order where order matters. So here we'll be dealing with combinations. So the symbol C would come into picture. You will see a C, and that C would only be choosing, selecting, come, but who comes first, second, will not be dealing with that. So more a practical aspect in next class. Now today we'll be discussing the symbols involved in combination. So when you actually see what exactly it is, so this is the aspect we'll be dealing, NCR, right? So what exactly is NCR? NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. So now some of you who have already done thoroughly permutation can see this factor very nicely. What is this factor? NPR. So if I multiply it that side, in a way I can say that NCR into r factorial will be NPR, right? So if we look into the other aspect of this, obviously the limits are 0 less than r less than n. So this formula is valid for r equal to 0 and up to n. And if you see this, when we cross multiply, it looks something like this. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज व्हाट यू लिख. सो हियर आई कैन राइट वन कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला टाइप that NPR is NCR into r factorial, which I'll be discussing in statement problems, the significance of this particular formula, right? Now let us try to get some of the results for values. What is NC0? So if I put r equal to 0, what you will get? n factorial upon ये 0 हो जाएगा, n factorial कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 0 factorial, and we know 0 factorial is 1. So NC0 is simply what? 1. What if we put n out here, the second limit, NCN? So n factorial upon n minus n, 0 factorial 1 into n factorial, that gets cancelled, so again 1. So we see both extremes give answers 1. NC0 is 1 and NCN is also 1. And just for your sake, what will be NC1? So when you find NC1, n factorial upon n minus 1 factorial into r factorial. So when you talk of NC1, that is going to be n factorial upon n minus 1 factorial into 1 factorial. And you know, when we simplify the factorials, the higher one is reduced. So n is bigger than n minus 1. So if I take n common, what I am going to get? N minus 1 factorial. So upon n minus 1 factorial, this is going to get cancelled, and NC1 will be n. NC1 क्या रह जाएगा? Will be simply equal to n. So NC0 is 1, NC1 is n, and NCN is n. So that is what we discussed here. What exactly the meaning of the symbols, the formula, the restriction, and then some values which we'll be using directly. So now moving on to the other aspect of calculations, which is an important aspect which you need to actually see. So suppose we are doing 10C3. So 10C3 would be 10 factorial upon 10 minus 3 factorial upon into 3 factorial. So that would be 10 factorial upon 7 factorial into 3 factorial. So what is 10 factorial? 10 into 9 into 8 into 7 पे रोक दिया. Why?
because we have a 7 factorial here. So this 7 factorial and this 7 factorial gets cancelled, 1 into 2 into 3. So you'll get 120. So that is how we calculate 10C3. Now some of you must be wondering, when we do 10P3, we actually don't use this formula and we just do 10 into 9 into 8. So can we do similar something here? Yes, we can do. Only thing is, if you note the formula, we have one division extra out here. So if you are doing 10C3, so you have to descend like from 10, 3 factors. So 10, 9, 8. And in denominator, you have to ascend 3 factors from 1. So 1 into 2 into 3. So what exactly it is going to be like this. The shortcut which we will be using is 10C3 is what? 10 into 9 into 8, descending 3. And ये 3 है, तो 1, 2, 3 हम ascend करेंगे and we will get 120, right? So 9C4 and others which we want to find, say 9C4. So from 9, what you will do, बच्चे? Descend 3 factors, 4 factors, 9 into 8 into 7 into 6. And from denominator, you ascend 4, 1 into 2 into 3 into 4. So this 3, 6 gets cancelled and ultimately 2. So you'll have 126, right? So I hope you understand what we are doing. And similarly, now let's see NC2. Now if you apply this formula NC2, you will get n factorial upon n minus 2 factorial into 2 factorial. So what exactly it is like this? So I said while simplifying factorials, बड़े वाले को छोटा करते हैं. So n minus 2 और n में तो n बड़ा है, ये तो minus 2 छोटा हो गया. n बाहर निकालो, अंदर n minus 1 factorial बचेगा. n minus 1 निकालो, एक कम, n minus 2 factorial. So this gets cancelled and it comes n into n minus 1 upon 1 into 2. Now same concept which you applied here, we can apply here. n से descend करो 2 factors. So n से descend करोगे n minus 1 पे आएगा. अगर मैं 10C2 निकालूंगा तो 10 into 9. So n into n minus 1 and upon 1 into 2. So whenever there is no r or n out here, you can actually use this concept. So likewise NC3, n minus 1, n minus 2 upon 1 into 2 into 3. So these are the basics which you need to know before we go ahead in solving problems of this. I suppose you can understand the concept very clearly, and these are the little formulas and all which we'll be using in our further questions, right? So NC2 का मतलब NC3, NC4, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 upon 1 into 2 into 3 into 4, right? So now say there is a question, NC2 is equal to 6, find n. NC2 is equal to 6, find n, right? So in this problem, how do you go about? Now you know that what is NC2. This is the first step I think we can write. n minus 1 upon 1 into 2 is equal to 6, NC2. So now what do? You cross multiply this and be here. So now you get 12 here and split the middle term. So n square minus n minus 12 is 0. And what is the middle term? Product minus 12, sum minus 1, minus 4 and 3. So here we split it, minus 4n plus 3n minus 12. Take out the factors, you will have n minus 4 and this n plus 3. So either this is 0 or this is 0. एक से n 4 आएगा, एक से n minus 3, n negative नहीं हो सकता, because it is valid for 0 से लेके n तक, r तक. So they have to be positive integers, 0 to n में. Minus 3c2 doesn't make any sense. So we'll reject it. n is 4, n is 0. So n is equal to minus 3 is not possible, as n cannot be negative. n cannot be negative. ठीक है? Is it clear? Next, we go on to do this simple question where NPR is given and NCR is given and you have to find R. Now I'll just take you back. The concept which we discussed here, NCR into R factorial is NPR. Are you getting? So when you actually do it, what exactly we would go about it? Very simple. NPR
is equal to NCR into R factorial. NPR is how much? 720. NCR is 120. So what you are going to get? R factorial 6 आ गया. So what do you do? R factorial 6. 6 can be written as 3 into 2 into 1. And what is 3 से लेके 1 तक? 3 factorial. So therefore R is 3. So that is how you solve this particular question. Right? You solve this particular question. So now what we can do, you can have a look at both the questions and then we can go ahead. I hope you have understood both the problems. They are just basics, as I told you, which we are doing it here, right? Okay, so once we are done with this, then we'll move on to the next aspect, a simple question based on this, 2nc3 upon nc3. Now I said if you have a number out here, what do you do? And if you don't have a number, then what do you do? If you have a number, apply direct formula. NC3 का मतलब क्या? n से 3 फैक्टर्स डिसेंड करना है अपॉन एसेट. पर 2nc3 का मतलब 2n से कम होना है, तो 2n है, उससे नेक्स्ट एक कम, 2n minus 1, 2n minus 2 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम इसमें करेंगे. सो नाउ यू सी दिस इज व्हाट इज गिवन. फर्स्ट इसका रेशियो 11/1 है, तो सबसे पहले आप ये देखो 11/1. So what does this mean? See, 2nc3 का मतलब क्या है? 2n, 2n minus 1 एक कम और 2n minus 2, और नीचे क्या आएगा? 1 into 2 into 3. ये आपका 2nc3 आ गया, राइट? और अगर हम इधर जाएंगे nc3 पे, तो n से फैक्टर्स कम अपॉन 1 into 2 into 3 is equal to 11/1. Is it clear? अब हमको क्या करना है? देखो ये तीनों फैक्टर्स आपके कैंसल आउट हो गए, ठीक है, दे आर ऑल कैंसल्ड. एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? ये सारे कैंसिल हो गए. ये अब हम एक एक स्टेप वाइज बाकियों को कैंसिल करेंगे. अब आप देखो बहुत ध्यान से, ये n और n कैंसिल हो जाएगा. यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, कैन टेक 2 कॉमन, n-1 रहेगा तो वही n-1 से कैंसिल आउट हुई. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. 4 कैसे आ गया? 2 into 2 4 into 2n-1 11, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8n-4 11n-22 आ जाएगा. अल्टीमेटली जब आप करेंगे तो 22 इधर और 8n इधर, 18 is equal to 3n, n is equal to 6. So this is what we are going to get finally solving this question. ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करके n को हम 6 ला सकते हैं. ठीक है, I hope it is clear. Now we move on to next one of the beautiful questions. ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये पहले बाइनोमियल थ्योरम में होता था. Now this question is definitely a part of combination and it can be asked, इसीलिए मैंने इसको यहाँ दिया है. ठीक है, so this is what I have given over here. अब आपको इसको समझना बहुत अच्छे से है, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अब यहाँ 2n के जैसे नीचे 3 आया था, यहाँ n आ गया है 2ncn. तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वो फैक्टर्स तो कम करने वाला बहुत लंबा हो जाएगा. So let us try to see what does the formula mean. NCR का फॉर्मूला लगा रहे हैं. देखो बच्चे, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. तो 2ncn क्या होगा? 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल. आगे समझ? तो ये बेसिकली बेटा बन जाएगा, आप देखो 2ncn, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. आया समझ? अब हमें जो आंसर लाना है, वी कैन सी 1n फैक्टोरियल ऑलरेडी कमिंग हियर, नो फैक्टोरियल्स इन द न्यूमरेटर. सो हाउ डू वी गो अबाउट? सो राइट नाउ विल नॉट टच द डिनोमिनेटर, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर एंड सी हाउ द प्रॉब्लम प्रोसीड्स. नाउ सी चिल्ड्रन, फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली शो यू
कि ये तो 2n है, 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या, आप ध्यान से देखिए 2n, फिर 2n माइनस 1 होगा, 2n माइनस 2 होगा, ऐसे चलते चलते 1 तक आएगा। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज समझा दूं, अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूं मतलब इवन नंबर, तो 6 2 इंटू 3, अगर हम इसको समझें थोड़ा सा 6 फैक्टोरियल का एस्पेक्ट, तो 6 फैक्टोरियल को अगर हम चाहें तो 2n के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आपको पता है ये क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे हो गया 1 तक। अब मेरे को इवन और वो फैक्टर अलग करने, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 6 फिर 4 लिख लिया फिर 2, ऑल्टरनेटिवली एक इवन है एक ऑड है, और क्या लिख दिया 5 इंटू 3 इंटू 1, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको। तो अब आप बताइए, ये 2n है, ये इवन नंबर होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ऐसे चलते जा रहे हैं, 1 तक आना है, तो ये ऑड हो गया, ये इवन ऑड इवन, ऐसे चलेगा। तो क्या मैं इनको अलग अलग करके लिखूं, मतलब इवन ये है 2n, 2n माइनस 2, और ये अब देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, नीचे n फैक्टोरियल था, बात समझिए, हमने 2n ले लिया, फिर 2n माइनस 2 ले लिया, 2n माइनस 4 ले लिया, डैश डैश 6 ले लिया, 5 छोड़ दिया ऑड है, 4 ले लिया, 2 ले लिया, ये तो इवन फैक्टर्स इसमें से ले लिए। ऑड 2n माइनस 1 से शुरू हो रहा है, 2n माइनस 3, ऐसे करके 5 3 1, और नीचे मैंने अभी भी आपके फैक्टोरियल्स एज इट इज रखे हैं। इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस रखेंगे इसके ऊपर। समझ में आ गया आपको, हमने 2 पार्ट्स में जैसे यहाँ अलग किया था ये कर लिया, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए किया था। अब आप देखो इस सब में 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब क्या होता है कि हम इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं, और ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां पे जब 2 कॉमन लेते हैं बच्चे क्या लिखते हैं, इसके बाहर 2 लिख देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेटा 2 कॉमन नहीं आएगा, जो आप सब गलती करते हो, 2 रेज टू n आएगा। क्यों, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, सबके 2 बाहर आ रहे हैं, एडिशन नहीं है। अब आप बात समझो, जैसे अब मैं इन तीनों में 2 कॉमन लूंगा, तो इससे 2 इससे 2 इससे 2, तो 2 क्यूब बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो एज इट इज। अब आप अगर खाली ये क्यूब नहीं लिख के 2 लिख देंगे, सो दैट इज रॉन्ग। यू सी दिस 2 इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ओनली 1 चाहे, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। आप समझ गए। हाँ, अगर प्लस हो रहा होता वो अलग चीज है। अब जैसे 6 है प्लस 4 है प्लस 2 है, तो इसमें तो 2 कॉमन होगा, फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 आएगा। बट इफ इट इज 6 इंटू 4 इंटू 2, तो सब में से 2 कॉमन है, 2 क्यूब कॉमन आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब क्या है, सब में से 2 कॉमन आके 2 रेज टू पावर n बाहर। अब समझो पहले में इतना, सबसे 2 कॉमन लिया, 2 रेज टू n बाहर, क्या बचेगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ से 2 आ गया, n माइनस 1, n माइनस 2, यहाँ क्या हुआ 3, यहाँ क्या रह गया 2, यहाँ क्या रह गया 1। ये एज इट इज, बस इसको उल्टा लिख देते हैं, मतलब 1 से शुरू होके एंड कर रहे हैं। सो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n। नीचे क्या है, n फैक्टोरियल है, वो एज इट इज, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब आपको समझ आ रहा होगा एक इंपॉर्टेंट चीज, कि ये n से लेके 1 तक जा रहे हैं कंटिन्यूसली। n से लेके अगर कंटिन्यूस 1 तक जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल। और जैसे आप इसको n फैक्टोरियल लिखोगे, ये एज इट इज n फैक्टोरियल इनटू दिस अपॉन 2n, एक n फैक्टोरियल कट गया, आपको जो चाहिए वो आप देखिए आंसर के तौर पे एकदम आ गया। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस 2 रेज टू n as it is, it comes out, right? So this is very important question, and that is how you proceed to them. So you can copy this question, and now we move on to the next property aspect and this things. An important thing, don't forget to subscribe our channel. ठीक है, भूल ना जाना। ठीक है, you will get important lectures, updates, the syllabus content if it keeps on changing, any new addition, so you'll get all latest informations। forms आएंगे, career options होते हैं, कई special classes, कुछ भी होते हैं,
ठीक है ना, अप्लाइड मैथ्स में क्या है, नहीं लेना चाहिए. देयर सो मेनी डिस्कशन फोरम्स व्हिच वी कीप and the videos on the chapter. So do subscribe to the channel and press the bell button. Right? So now we go into property. Now you can see one of the important property, NCR is equal to NCN minus R. इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है भाई NCR निकालो चाहे NCN minus R निकालो, एक ही चीज है. आइए, NCR का फॉर्मूला तो हमें पता है, NCN minus R क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर. r की जगह क्या है? n माइनस आर. सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ये फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ये r. अब ये n और n कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा? r फैक्टोरियल, यही बचेगा. और ये क्या है बेटा? दिस इज नथिंग बट NCR. तो इसीलिए कहा जाता है बच्चे कि आप NCR निकालो चाहे NCN माइनस R निकालो, एक ही चीज. इसका फायदा कहाँ है? ये मेन चीज, कैलकुलेशन बचाने के लिए. अब आप देखिए कि 10C3 10C7 ये हमने निकाला. अब आप देखो मुझे 10C7 निकालना है, तो 10 से लेके वैसे तो मैं 7 फैक्टर्स डिसेंड करता और असेंड करता, वो लिखने में टाइम जाता. अब मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है. आपको देखना इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो कितना आया? 3. क्या 7 से कम है? जो नंबर है हाँ कम है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे. देखो 10 10C, यहाँ पे 7 था तो मैंने क्या लिख लिया? 10C 10 माइनस 7. तो ये क्या बन गया? 10C3. तो 10C7 और 10C3 एक ही चीज होने वाली है. तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3. सो दिस इज यूजफुल कब? जब हम इन दोनों का डिफरेंस लें और वो इस पर्टिकुलर नंबर से कम आ जाए. तो अगर 10C3 होता फिर हम 10C7 थोड़ी बनाते, क्योंकि 10 और 3 का डिफरेंस होता 7. तो ये देखो, अब जैसे है 25, तो जब हम इसको देख रहे हैं बेटा, 25 और 22 का डिफरेंस कितना है? 3. कम है ना 22 से, तो इसीलिए हम इसको 25C n माइनस आर 25C3 कर देंगे. तो 25 इंटू 24 इंटू 23 1 इंटू 2 इंटू 3. तो ये 2 से 12 हुआ, 3 से 4 100 इंटू 23 100 आ जाए. अब देखो 6C4 है, तो 6 और 4 का डिफरेंस 2, 4 से कम है तो हम लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड. ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है. छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, अभी अगला हम क्वेश्चन वही करने वाले हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिराइव होती है ये कि अगर NCX NCY के बराबर है तो क्या है. हम ये कहते हैं अगर NCX NCY के बराबर है तो XY के बराबर होगा. एक तो यही प्रॉपर्टी है, और नहीं तो हमने अभी जो देखा x प्लस वाई n होगा. कैसे बोला? आप देखो ये दोनों इक्वल है, तो 10 और 10 तो ठीक है, पर 7 और 3 तो इक्वल नहीं है, पर 7 प्लस 3 10 है या नहीं. तो जब भी ऐसा होगा इन दोनों का सम n के बराबर आ जाएगा. तो अगर NCX NCY के बराबर है या तो XY के बराबर है, तब मुझे n का नहीं पता. और अगर n का पता है तो आई कैन से x और y का सम n होगा. आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक एक 2-2 नंबर में भी पूछे जाएंगे. क्वेश्चन है NC15 इज इक्वल टू NC8. तो अब देखो पहली प्रॉपर्टी का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, मैं x इक्वल टू वाई थोड़ी कह सकता हूँ. तो n निकालना है. n क्या होगा? इन दोनों का सम. n आ जाएगा 15 प्लस 8 23. तो यानी ये मेरे से 23C21 निकाल रहे. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी है. तो n 15 प्लस 8 हो जाएगा, तो n 23C1. और 23C1 क्या होगा? 23C कम कर सकते हैं ना, 23 माइनस 21 23C2, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे. 23 इंटू 22 अपॉन 1 इंटू 2 11 230 प्लस 23 253. क्लियर है? तो ये सिंपल एप्लीकेशन है प्रॉपर्टी का जो आप देख रहे हैं. and those are the properties which we will be using in further statement problem calculation also. So today we are actually learning calculation aspect. ठीक है ना, इसको थरो करना है. गाड़ी सीखते हुए स्टीयरिंग कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, फिर एक्सीलेटर की बात आती है. अगर एक्सीलेटर ही पहले दबा देंगे और बाकी बेसिक्स नहीं पता तो दिक्कत होती है. सो दैट इज व्हाट इट इज. आइए इसके ऊपर एक दो और छोटे से क्वेश्चंस देखें. जैसे ये देखिए 10C6 10CX इज इक्वल टू x प्लस 4 फाइंड x.
वो मुझे पता है एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, तो एक तो ये दोनों को इक्वल, लेकिन इन दोनों को इक्वल करूंगा एक्स एक्स कट जाएगा, 4 इक्वल टू 0 बेकार। दूसरा ये n जो है इन दोनों का सम होगा, तो ये देखो ये तो बेकार है, तो इसीलिए इस कंडीशन से कोई आंसर नहीं आ रहा, x इक्वल टू एक्स प्लस 4। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो है इसका सम होगा, तो आप देखो 2x प्लस 4, तो 10 माइनस 4 ये हो जाएगा, तो x 3 आ गया। वैल्यू भी मार के देख लीजिए, 10c3 इज इक्वल टू 10c7। इज इट क्लियर? कई बार 2 वैल्यूज आती हैं, कई बार 1 आती हैं, डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब जैसे ये देखो 34cr माइनस 6 इज इक्वल टू दिस, फाइंड आर। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को इक्वेट करना है, और एक इन दोनों का सम 34। तो पहले तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं भाई, किया इक्वेट, तो मेरे पास r आ गया -4, बेकार, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना r। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, इन दोनों को तो इक्वेट कर दिया x इक्वल टू वाई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का सम n होगा। तो अब देखिए 34 इज इक्वल टू इन दोनों का सम, दैट इज 3r माइनस 8, और 42 इज इक्वल टू दिस, तो r 14 आएगा। सो अगेन हियर वी गॉट सिंगल वैल्यू, वहां भी सिंगल वैल्यू, और कभी कभी 2 वैल्यूज भी आ जाती हैं। एग्जामिनर उसमें आपसे एक्सपेक्ट करता है दोनों निकालो, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। सो डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? r इज इक्वल टू क्या आ गया, 14। सो आई होप यू आर क्लियर विद बोथ द प्रॉब्लम्स। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 वैल्यू निकालें। अगले क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं, देखें इसमें है 18c2r इज इक्वल टू 18cr प्लस 3 rc2 निकालना है। तो rc2 क्या आएगा? अब मैंने ये कहा कि भाई अगर ncx ncy के बराबर है या तो xy के बराबर होगा, इन दोनों का सम n होगा। तो चलिए हम कंडीशंस देखते हैं। ये कंडीशन क्या है, x इक्वल टू वाई, r क्या आ गया 3, लेकिन r और भी है, यही एग्जामिनर चाहता है, और भी आ सकता है, आप निकालेंगे या नहीं, अदरवाइज दे विल कट योर मार्क्स। सो नाउ अदर इज, इन दोनों का सम इज 18, 18 is equal to इन दोनों का sum. Got it? So what are you going to get? So once you get this, you will get 15 is equal to 3r. r is equal to 5. तो r की 2 वैल्यूज आ गई, 3 और 5। तो जब मैं rc2 निकालने जाऊंगा तो मेरे को 2 वैल्यू निकलेंगे। और एक बार देखें, वेरीफाई कर लें इक्वल है या नहीं। अब आप देखो 18c6 और 6, r से तो दोनों सेम आ गए, लेकिन जब R5 डालूंगा, एक जगह 18C10 आएगा, 8 आएगा। अब 18C10 देखो, 18 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, 8। हमने पढ़ा ना NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो ये भी इक्वल है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, RC2। तो पहले 3C2 निकालोगे, 3C2 डायरेक्ट भी निकाल लो, मैंने कम नहीं किया, 3 × 2 अपॉन 3 आ गया, और फिर R को 5 डालो, 5C2 5 × 4 अपॉन 1 × 2, और ये वैल्यू गलत हो गई है, 5 × 4 अपॉन 1 × 2, ये आपकी 10 आएगी। वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, ठीक। सो 5 × 4 अपॉन 1 × 2, तो ये कट गया और आपकी 10 आ गया। सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू विल गेट 2 पॉसिबल आंसर्स। इज इट क्लियर? ओके, देख लो आप इसको ध्यान से, कोई डाउट हो या कोई चीज है तो आप बता सकते हैं। You can look this question. This is a question where you get 2 values of r. Okay. Now we move on to the next important concept. ये normally हर स्कूल में नहीं पूछा जाता, ये कुछ जो स्कूल्स तंग करते हैं, पेपर टफ बनाते हैं या ये है, वहाँ ये प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, NCR और NCA, मतलब यहाँ दोनों जगह n है, यहाँ r है और उससे एक कम है, तो कहते हैं विल बी इक्वल टू n + 1 CR। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में तो इसको हम समझाएंगे क्या एस्पेक्ट होता है, पर CBSE लेवल पे ये कम पूछा जाता है, पर चूंकि कुछ स्कूल पूछ सकते हैं, इसका प्रूफ हम कर लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। LHS लेते हैं और हम वैल्यू डाल देते हैं। अब आप देखो, कुछ नहीं करना, आई हैव जस्ट सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू, NCR के जगह ये वैल्यू, NCR - 1 n फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस इनटू r फैक्टोरियल। ये आप आराम से देख लीजिए कि दिस इज व्हाट द फॉर्मूला एप्लीकेशन इज, इसका और इसका, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया।
अब जब आपने फॉर्मूला लिख दिया तो इसका सम निकालना है। आइए इसका सम देखते हैं। यहां पर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1। ये दोनों अब सिंप्लीफाई होके तैयार हो गए हैं टू बी सब्स्टिट्यूटेड देयर इन LHS। तो LHS में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो बच्चे ये आएगा, ये NCR प्लस NCR माइनस 1, इसकी वैल्यू इधर और इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है इधर। फैक्टोरियल में बेटा एक ही कॉन्सेप्ट है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे छोटे और बड़े का, बड़े को कम करेंगे, छोटे को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ तो दोनों जगह n है, इसको मैं देख ही नहीं रहा। फैक्टर्स नीचे वाले ये r और r माइनस 1 में, r और r माइनस 1 में कौन बड़ा? r। तो r को टच करूंगा और r माइनस 1 बनाऊंगा एक फैक्टर निकाल के। ये n माइनस r है, ये n माइनस r प्लस 1 है, तो ये बड़ा हो गया। तो इन दोनों को ही हम कम करेंगे और फैक्टर को कॉमन निकालेंगे। मतलब इसको मैंने टच नहीं किया, इसको तो करना ही नहीं है। r बाहर निकाला तो r माइनस 1 रह गया एक कम, ये पूरा बाहर निकाला माइनस 1, तो n माइनस r रह जाएगा, इसमें से माइनस 1 करेंगे एज इट इज। अब आप देखो n फैक्टोरियल कॉमन है, n माइनस r कॉमन है और r माइनस 1, तो इसको हम देखो पूरा बाहर निकाल रहे हैं। आप समझ में आया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, r माइनस 1, तो ये फैक्टर यहां से निकल गया। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर ये फैक्टर यहां से ऐसे, ये देखो ये निकल गया, तो 1/r बचा और यहां से ये फैक्टर पूरा बाहर निकल गया, तो क्या बच गया? 1/n माइनस r प्लस 1। इसको आप देख लीजिए। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और वो आंसर आ जाना चाहिए। अब n प्लस 1 CR क्या होगा वो आपको पता ही है कि n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल नीचे आएगा और r फैक्टोरियल नीचे आएगा और ऊपर n प्लस 1 आएगा। तो अभी ये आ गया। अब हम LCM लेंगे, तो अब देखो एज इट इज, तो ये LCM लिया, r और r कट गया। अब देखो n प्लस 1 इंटू n आ गया। अब आपको एक चीज समझनी है बच्चे, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये बाहर आता है तो कम। तो इसीलिए अब आप देखो यहां ये कटने वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। यहां भी कुछ फैक्टर्स हैं, ये देखो इन दोनों भाई साहब का प्रोडक्ट, r अंदर जाएगा r फैक्टोरियल, n माइनस r में फैक्टोरियल और ये बाहर, अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो आप समझिए क्या होने वाला है, ये ऊपर तो ये हो गया और नीचे ये हो गया। ऐसा क्यों हो गया? देखिए डिनोमिनेटर में ये जो n माइनस r है इससे मल्टीप्लाई अगर होगा तो n माइनस r प्लस 1 बनेगा, और r r माइनस 1 r फैक्टोरियल बनेगा। सो नाउ व्हाट वी गेट, n फैक्टोरियल 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, n माइनस r प्लस 1, ये क्या ये n प्लस 1 CR नहीं होगा? क्या होगा इसका फैक्टोरियल? ये ऊपर आएगा, आ गया। नीचे क्या आएगा? इसका और इसका डिफरेंस, तो देखो n प्लस 1 माइनस r और r फैक्टोरियल। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज फॉर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो CBSE में बहुत पूछा जाता है, IIT का बहुत पुराना सवाल है, जो विच विल डिस्कस। तो फॉर्मूला का आपको ट्रिक देखना है कि भाई ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो n प्लस 1 CR हो जाता है। सो आई सपोज यू आर क्लियर विद दिस फॉर्मूला एस्पेक्ट। आप कॉपी करने के लिए कभी भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने इसको समझा के और अच्छी तरह आपको किया। अब हम इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे एग्जाम्पलर पॉइंट का ही सिग्मा है। ये इसका मतलब क्या होता है? सम। हम लोग खाली जोड़ते हैं, हम किसी को नहीं तोड़ते। हम कहते हैं तुम भी हमारे साथ जुड़ो, हम भी तुम्हारे साथ जुड़े, नो डिसइंटीग्रेशन, ओनली ज्वाइनिंग। तो ये सिग्मा है। क्वेश्चन था 47C और j इक्वल टू 1 से लेके 5, 52 माइनस JC3। इसका मतलब j की वैल्यू 1 डालेंगे और 5 तक जाएंगे और उन सबको ऐड करेंगे। तो j को जब मैं 1 डालूंगा तो 51C3, 2 डालूंगा तो 50C3, 3 डालूंगा 49, 4 डालूंगा 48, 5 डालूंगा 47, बस वहीं तक, और उनको इन सब के साथ क्लब करना है। तो बहुत आराम से देखिए इसका मतलब क्या होने वाला है। जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये तो एज इट इज है, j को जब आप 1 डालोगे तो 51, 2 डालोगे ये एक्सप्रेशन आ जाता है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी।
अब आप देखिए दो n दिख रहे हैं कहीं सेम सेम एकदम फर्स्ट और लास्ट में, ये देखिए ये 4 है, ये एक उससे कम है। आइए ये देखिए n सेम सेम, एक वैल्यू उससे कम। तो अब यही हम एस्पेक्ट इधर चेक करेंगे और देखो क्या होने वाला है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने इसको और इसको क्लब कर लिया, मतलब NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1 CR। तो ये जो 47C4 है और 47 4 में यानी 47C3 क्या हो जाएगा, इसको जब मैं कर्व करूंगा ये 1 से बढ़ जाएगा और R एज इट, तो ये बेटा हो जाएगा 48C4। ये एज इट इज, ये एज इट इज, एज इट इज। अब फिर दो n कॉमन ढूंढो, ये दोनों कॉमन हो गए, ये 4 और 3, तो ये दोनों क्लब होते हैं, ये एक बढ़ जाएगा और बड़ा वाला 49C4। फिर ये इसके साथ आएगा 49 सेम, तो ये बन जाएगा 50C4, इसके साथ क्लब हो जाएगा। फिर क्या बनेगा 51C4, 51C3, ठीक है ना, और ये 52C4 तक चला जाए। फाइनल वैल्यू है 52C4, सो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो जब आप कैंसल आउट करोगे 4 13 हो जाएगा, 2 25 हो जाएगा, 3 75। तो ये वैल्यू लगभग आपको कैलकुलेट आप कर लेंगे। जो फाइनल आंसर होगा वो है 13 इंटू 17 इंटू 25, ठीक है। तो 17 इंटू 13 करोगे 170, तो यही हो गया, और प्लस 51 तो ये 221 हो जाएगा इंटू 100/4। ये शॉर्टकट लगा देते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो 17 इंटू 13 करेंगे 170 प्लस 51 हो जाएगा, और अब ये हो गया ये, तो 22100/4। तो जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 11 5 2 जा 10 20 सॉरी 4 से कर रहे हैं, तो 4 5 जा 20 21, फिर एक और 5 आ गया, ठीक है ना, तो 4 5 जा 20 और 10, फिर 2 आ गया और लास्ट में 5 आ गया। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 5525, ठीक है। तो जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को 100/4 कर दीजिए, इजी हो जाता है। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन। ये फिर कुछ ही स्कूलों में पूछा जाता है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। पहले बाइनोमियल में तो आता ही था, पर इट कैन कम इन PRC। अब आप एक चीज नोट करिए, इन क्वेश्चंस की खासियत क्या है। NCR-1, NCR R+1, तो n तीनों में कॉमन है और ये कंसेक्यूटिव है। R-1 उसके बाद R आता है, उसके बाद R+1 आता है। तो जैसे 3 1 फिर 2 फिर 3, तो तीनों के बीच डिफरेंस 1 होगा। तो आप इन R को डिफरेंस लीजिए, इसको लीजिए 1 1। कैसे करेंगे, इसको 1 ले लीजिए इक्वेशन, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3। इसके जनरल मेथड है, कुछ दिमाग और नहीं लगाना है, बहुत जनरल मेथड से हम चलेंगे। अब आप देखो, इसको मैंने 1 टर्म किया, इसको 2 टर्म किया और इसको 3 टर्म कर दिया, एकदम आराम से देख लीजिए। सो 1 2 एंड 3। अब क्या करना है, 2/1 करो एक बार, एक रिलेशन, एक बार 3/2 करो, बहुत आराम से। आइए मैं 2/1 करता हूं। तो देखो 2/1 किया तो क्या आएगा, सो 2 डिवाइडेड बाई 1, ये आएगा कि नहीं, बोलो ये आएगा कि नहीं। इन दोनों का रेशियो, ये 84 12 7 जा 3 जा कट गया। अब NCR क्या होता है, देखो NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और ये क्या होगा n फैक्टोरियल n माइनस इसका डिफरेंस का फैक्टोरियल इंटू दिस इक्वल टू 7/3, और यहाँ n फैक्टोरियल तो कॉमन कट रहा है, आराम से देख लीजिए। अब क्या होने वाला है बच्चे, ये जो n माइनस r और +1 है, ये फैक्टर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये फिर हम छोटा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट लगा के सिंप्लीफाई करेंगे। ये ऐसे हो जाएगा। आफ्टर दिस स्टेप दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अब देख लीजिए, क्लियर है। अब क्या, इन दोनों में बड़ा कौन, r, तो इसको कम करके कैंसिल करेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन, ये, तो एक न्यूमरेटर वाला कम होगा, एक डिनोमिनेटर वाला। देखो n माइनस r प्लस 1 बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, एक कम, n माइनस r हो गया इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल।
नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो इसको r को हम बाहर निकाल लेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा और ये इधर हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस इसको करिए। 6 नंबर 6 मार्क्स, 4 तो मिनिमम है, बट आइडियली इट हैज कैलकुलेशन, सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आस्क फॉर 6। सो विल सी नॉटी स्कूल, नॉट नॉटी इन द सेंस, जो स्टूडेंट्स को भाई 11th में कहते हैं भाई हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहेंगे। तो देखिए नाउ व्हाट हैपेंस, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3n ये, तो 3n माइनस 3r प्लस 3 7r, और इधर ले आएंगे 3n माइनस 10r प्लस 3 0। ये एक रिलेशन आ गया। सो 1 2 3 तो चल रहा था, इसको मैंने 4 टर्म कर दिया। इसको आराम से आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड है। 3 इक्वेशंस लिखेंगे, 2/1 1/2 आपके ऊपर है, जैसे मर्जी करिए। और अब मैं 3/2 करने वाला हूं ताकि n और r में एक रिलेशन, और फिर 10th में जो लीनियर था वो करेंगे। अब देखिए नाउ व्हाट आई हैव डन, 3/2 मैंने 3/2 कर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आते हैं बेटे, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, डरना नहीं है। और इस साल तो आपको अच्छा मौका मिल रहा है, तो ये थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं इसको। n फैक्टोरियल है अपॉन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन दिस, और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, इज इक्वल टू 3/2। एंड लाइक लास्ट टाइम दिस विल गो इन द न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा। देख लो, इज इट क्लियर? So now we can see that what is going to happen, this n minus r factorial ऊपर r factorial पहुंच गया, n minus r minus 1 into r plus 1 factorial is 3/2। So now what do we do? कौन बड़ा? r plus 1 बड़ा, तो इसको छोटा करेंगे। इन दोनों में कौन बड़ा? ये n minus r plus 1 नहीं है, -1, तो n minus r बड़ा। इसको बाहर निकालेंगे, निकाल लिया। देखो निकालते ही क्या रह गया, n माइनस आर माइनस 1, और इसको एज इट इज रखेंगे। नीचे देखो ये n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, r प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, r फैक्टोरियल, एंड नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। सो 2n माइनस 2r इज 3r प्लस 3, एक तरफ ले आते हैं। 2n माइनस 5r माइनस 3 0। अब यहाँ 3n था, यहाँ 2n, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 आ जाएगा। और ये जो रिलेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, व्हाट डिड आई डू, 4 इंटू 2, ये 4 है, इसको 2 से करो, 6n माइनस 20r प्लस 6, इक्वेशन 6 बन गया। और हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6n माइनस 15r माइनस 9। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट 7 माइनस 6 कर लेते हैं। 7 माइनस 6 करेंगे, ये कैंसिल, ये प्लस 5r और ये माइनस 15, तो r आ जाएगा कितना, 3। r की वैल्यू इक्वेशन 5 में डाल दीजिए 3, तो जब r को आप 3 डाल देंगे तो 2n माइनस 15 माइनस 3, सो 2n माइनस 18 बन जाएगा, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, so 2n minus 18 is this, n is equal to 9 आ जाए। So that's why I said this is a very good question, and the catch point is you will see this numbers being consecutive. They may ask you to find n and r, they may ask you to find rc2 nc2, कुछ और जो भी है, पर n और r के ऊपर डिपेंड करता है। So in this lecture I have taught you basically what, the calculation aspect, the formulas, the properties which we will use in this deleted syllabus. We don't have binomial theorem anymore, but what are some of the possible questions which can be asked here? I've discussed it, right? And please don't forget to subscribe the channel, the comments that makes us going, guys, right? The speed is slow, fast, or anything if you want to write, it will help us to serve you better, right? So you can watch this, and subsequently we'll be releasing the other lectures, so you need to wait for this, and that is it, right? So this is Keshav Agarwal signing off from Exemplar Point, and we'll see you in the next lecture. Bye guys.